تھا پوری دنیا میں ایک آدمی لا کے دکھا دو. کہاں ہو بے؟ ایک آدمی لا کے دکھا دو کہ اس آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی کیمرے میں ہے ہسٹری کے. کسی کی 10 اکتوبر کی ہے, کسی کی 15 اکتوبر کی ہے, کسی کی 20 مارچ کی ہے, کسی کی 5 مئی کی ہے, کسی کی 8 اکتوبر کی ہے, کسی کی جناب والا 15 جنوری کی ہے, مگر میرے نبی کی 24 گھنٹے کی قید ہے. سبحان اللہ. زور سے. سفر میں ہے تو ہسٹری دیکھ رہی ہے, حضر میں ہے تو ہسٹری دیکھ رہی ہے, جنگل میں منگل میں جناب والا مکے میں مدینے میں, سفر میں جناب والا ندی کے کنارے نہر کے کنارے حجرہ عائشہ میں مسجد پاک کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں تو کس شان سے پڑھا رہے ہیں, کون کون پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, رکوع کر رہے ہیں تو کس شان سے کر رہے ہیں, تک باتیں کر رہے ہیں تو کیسے پھول جھڑ رہے ہیں. لاؤ پوری دنیا سے ایک شخص لا کے دکھاؤ جناب والا. ابے نہیں لا سکتے کسی دنیا سے ایک انسان میرے مصطفیٰ کی طرح جس کی 63 سال کی عمر ظاہری کا ایک ایک لمحہ اتہاس کی ہسٹری کی آنکھوں نے قید کر رکھا ہے. یہ میرا نبی ہے اکیلا دنیا میں جو یہ شرف رکھتا ہے, اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہمت کیسے ہوئی تمہیں آنکھیں دکھانے کی؟ ارے تم اندھے ہو کہ وہ اندھے, سورج دکھائی نہیں دے رہا کیا جناب والا سورج پہ اثر کیا پڑے گا؟ یہ میرا نبی ہے. جناب والا میں بہت لمبی بات کرنا نہیں چاہتا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں 5 منٹ اور آخر میں تکملہ بن گئے, تتمہ. کیا مجمع ہے مفتی سلیم صاحب, علامہ عاقل رضا صاحب, کیا شانتی ہے. دیکھیے آپ کیسے سن رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جواب نہیں صاحب. مصطفیٰ جان رحمت آخری رسول الیوم اکملت لکم دینکم اسلام کا تتمہ لگ گئی مہر. لا نبی بعدی ولا کتاب. مگر شیطان بڑا ظالم ہے, بہت اتیاچاری, بڑا اہنکاری, بہت اتیاچاری, بہت اہنکاری. یہ ظالم طوفان اٹھاتا رہا, آندھیاں اٹھاتا رہا, چلتی رہیں. یہ دیکھو شیشہ ہے, کلیئر ہے, شیشہ ہے, تمہیں عکس نظر آتا ہے, مگر یہ آندھی چل گئی, دھول آ گئی, شیشے پہ ہٹ گئی, طوفان آ گیا, دھول آ گئی, شیشے پہ ہٹ گئی. ایک وقت ایسا آ گیا کہ دھول نے سارے شیشے کو کنٹرول کر لیا اور شیشہ اندر ہو گیا, دھول باہر ہو گئی. لیکن مفتی سلیم صاحب قبلہ علامہ عاقل رضا میرے محسن علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ جوکھن پوری دامت اللہ العالی تشریف لائے. مولانا کمال اختر اٹھو, ادھر آؤ, یہ دھول ہٹاؤ, صاف کرو. بڑا احسان کیا, شیشہ پھر ویسے ہی ہو گیا. یہی حال مذہب اسلام کا ہے, یہی حال ایک شیشہ ہے. حضور کے پردہ ظاہری فرمانے کہ حالانکہ میرے نبی کل بھی زندہ آج بھی زندہ, جناب والا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اور اس کا بیان سمن نبی زندہ ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ کہ ہم زندہ ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے, اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی دنیا سنسار نہ ہوتا, نہ کائنات ہوتی. میرے اعلیٰ حضرت صحیح فرما گئے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. نبی زندہ, دلیل یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اب جناب والا میرے نبی نے پردہ فرما لیا, شیطان نے طوفان اٹھائے, آندھیاں چلیں اور زوروں کی آندھیاں چلی. 5 منٹ چاہوں گا مفتی صاحب قبلہ دامت اللہ العالی, صرف 5 منٹ. آندھیاں چلیں, طوفان اٹھے, دھول آئی, اٹ گیا شیشہ, پٹ گیا شیشہ, اور شیشے پہ چاروں طرف دھولی دھول. اسلام اندر ہو گیا, دھول باہر ہو گئی. مکسنگ اور فکسنگ کا گھناؤنا کھیل شروع ہو گیا. جناب والا اب کون دکھائے اسلام کا صحیح چہرہ, کون دکھائے شیشے کو صاف کر کے؟ اللہ بڑا رحمان ہے, رحیم ہے,
ہے کریم ہے اس اللہ نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اور اس شیشے کو صاف کر کے دنیا کے سامنے صحیح چہرہ دکھانے کے لیے اسلام کا صحیح چہرہ دکھانے کے لیے اللہ نے ہم سب پر کرم کر دیا اور حضور سیدنا و شیخنا و کنزنا و ذخرنا بیومنا و غدنا سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. ابو بکر صدیق نبی کے یار غار تشریف لائے اور جان مال اور اولاد کی پرواہ کیے بغیر اسلام کا یہ شیشہ بالکل کلیئر کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. موت احسان صدیق اکبر کا مردود ہے وہ جو صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. کلاب حاویہ میں سے کتے ہیں وہ جو صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. بس بہت مختصر میں شارٹلی سید وسیم میاں صاحب ماشاءاللہ آل رسول یہاں موجود ہیں. عرض کرنا بس رہ گئے ہیں 2-3 منٹ. کیا کروں کہاں کیسے مکمل کروں. حضرات محترم کرتا ہوں مکمل اس سے پہلے کہ کوئی مجھے جزاک اللہ کہہ دے. میں جناب خود ہی جا رہا ہوں. اسلام پہ شیشے پہ پھر دھول اٹ گئی. جب شیشے پہ دھول پھر اٹ گئی مکسنگ فکسنگ کا گھناؤنا کھیل شیطان کھیلتا رہا انٹرنلی اور ایکسٹرنلی لے کے آیا چاروں طرف سے یونائٹڈ پلیٹ فارم بنا لیا اگینسٹ اسلام. تو پھر اللہ نے بڑا کرم کر دیا اور اس اللہ نے مسلمانوں کو وہ شیشہ دکھانے کے لیے سیدنا عمر فاروق اعظم کو بھیج دیا. عمر فاروق وہ عمر جس کی آداب شہدہ سقر خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اکیلے عمر ایک طرف دنیا کے 2 سپر پاور ایک طرف. قیصر دھوست ہو گیا کسرا دھوست ہو گیا 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا اکیلے حضرت عمر فاروق اعظم نے لہرا دیا. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. پھر دھول اٹی پھر دھول طوفان اٹھے. عثمان غنی جامع القرآن کی حیثیت سے زمانے میں آئے. پھر دھول اٹی اسد اللہ الغالب تشریف لائے. پھر دھول اٹی داڑیوں ٹوپیوں اور اماموں باندھ کے جبے پہن کے کچھ مولوی نما گندم فروش پھر اٹھے پوری ٹولی بنا کے. ہر دور میں رہتی ہیں ایسی ٹولیاں ہر دور میں. جھولی کمپنی جیسے آج کل ہے جھول کمپنی. شرابی شبابی مولوی نما گندم فروشوں کی جھول کمپنی. اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی ڈھول کمپنی. اور جیسے ہے ناجائز پیروں کی ہول کمپنی. تو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں اور دریدہ دہنیاں کر رہے ہیں. جنگلیوں کو شرم بھی نہیں آ رہی. 14ویں صدی میں کھانے کی تمیز نہیں ہے ان دریدہ دہنوں بے باکوں کو. جناب والا اور باتیں کرتے حضرت امیر معاویہ کی مفتی صاحب قبلہ اور علامہ عاقل رضا مفتی سقیر احمد صاحب اور جناب اپنے ذمہ داروں سے جناب ذمہ داروں کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرس رضوی کے مہمانوں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ غلط ہیں تو پھر امام حسن کو کیا کہو گے, فاطمہ کے بیٹے کو کیا کہو گے, لاش دلارے کو کیا کہو گے, علی کے پیارے کو کیا کہو گے, دین کی عزت بچانے والے اور ناموس و حرمت رسول کو اور جناب والا اپنی جان دے کر بچانے والے امام حسن کو کیا کہو گے, جس امام حسن نے ہی حضرت امیر معاویہ کو خلافت کے امور دے دیے تھے. بے شک سبحان اللہ. شرم نہیں آتی ظالموں کو. عرض کرنا چاہتا ہوں جب یہ ٹولی بنی تو جناب والا اللہ یا رسول اللہ یا غوث زندہ باد زندہ باد. بس حضرت امیر معاویہ کا نعرہ لگا, مجھے بہت خوشی ہوئی. اور نعرے لگایا کرو, آج بہت ہی تاریخ دور ہے, بلیک ایج ہیں. میں جناب آخری بات کر رہا ہوں, بالکل آخر میں آ گیا ہوں. میں اس کمپنی کے خلاف جب دھول اٹھی, جب شیشے پہ دھول آ گئی, اللہ نے کرم کر دیا اور میرے اللہ نے اس پوری کمپنی کو دھوست کرنے کے لیے
फातिमा जहरा के बेटे हुसैन आजम को करबला में भेज दिया। आ गए हुसैन आजम और खुदा की इज्जत की कसम मेरे हुसैन ने हर तरह का बलिदान देकर इस शीशे को साफ करके दीन का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश कर दिया। उसके बाद आंधी चलती रही, मुतसिम बिल्लाह आया और आंधी चलाई, तूफान उठाए, ये शैतान का चमचा था मगर अल्लाह ने करम कर दिया। खुदा की कसम अल्लाह ने इमाम अहमद इब्न हंबल को भेज दिया, उन्होंने धूल को हटा के इस्लाम का सही चेहरा दिखाया। अपने भारत को देख लो, दो बात आखिरी बोल रहा हूँ, 2 मिनट में पूरी हो जाएगी। हजरत मोहतरम इस भारत में अकबर आजम जिसे लोग कहते थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, सर्व धर्म का नाम लाके इस जालिम ने इस्लाम के इस शीशे पे धूल हटाने की कोशिश की तो अल्लाह ने पंजाब से हुजूर मुजद्दिद अल्फे सानी को भेज दिया, आंखों में आंखें डाली और दीन का सही चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया। उसके बाद भेड़ियों की चौतरफा महाजाराई हो गई, बहुत खतरनाक तूफान उठे, आंधियां चली, शीशा फिर मुकद्दर हो गया, धूल ही धूल। तो फिर मेरे अल्लाह ने करम कर दिया और अल्लाह ने फिर इस बरेली की जमीन पे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आतमिनात रब्बिल आलमीन मौजूदात सय्यदुल मुरसलीन सय्यदी व सनदी व कुंजी व दुखरी लियौमी वगदी सरकार सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी को शेरे नर मर्द खुदा बनकर मेरा मुजद्दिद चौतरफा भेड़ियों की महादाराइयों पे अकेला डटा रहा, पाए सबात में लग़ज़िश न आई, न जान की परवाह न माल की फिक्र न औलाद का टेंशन तो हुर्मतों नामूसे मुस्तफ़ा का टेंशन। और नतीजा ये निकला कि आज पूरे बर्रे सगीर में सुन्नियत की बहारें ही बहारें नजर आ रही हैं। ये है एहसान मेरे आला हजरत का। बस जाता हूं इस उम्मीद के साथ कि होश में आओ। खास तो आज नारे लगा लियो, बाद में जलसों में बुला लियो, फिर लगा दियो, जलसे कराओ, उन मुकर्रिरों को बुलाओ जो मसलक आला हजरत के साथ डबल गेम नहीं खेल रहे हैं। आज बहुत सारे मौलवी यहाँ स्टेजों पे भी नजर आते हैं और मसलक आला हजरत के खिलाफ डबल गेम खेल रहे हैं। अगर तुम आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करते हो तो ऐसे मौलवियों को स्टेज मत दो, जाहिल मौलवियों को स्टेज मत दो। और जनाबे वाला ये शायर बेनमाजी स्टेज मत दो और ये वीडियोग्राफी का मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सगीर अहमद साक़िब रज़वी जोखनपुरी भी तशरीफ़ फरमा हैं, जो मिस्र के दौरे से और उम्रा करते हुए भी 2 दिन पहले लौटे हैं। उनका भी खिताब आपको सुनना है और एक लंबी फहरिस्त तारुफ कराऊंगा, बहुत वक्त लगेगा। यहाँ कोई अपना फ़न दिखाने नहीं बल्कि सरकार आला हज़रत के फ़ियूज़ बरक़ात हासिल करने की नीयत से हाजिर होता है। अब मैं आपके सामने 5 मिनट के लिए मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला के बरादर असग़र मौलाना नेमतुल्लाह साहब तशरीफ़ लाएँ और सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। मेंबर नूर पे जलवा फरमा उलमाए कराम और आला हज़रत के 106वें उर्स में आने वाले तमाम उशाक़ आला हज़रत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। तर्जमाने नबी हम ज़माने नबी, तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसकी आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। और नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का,
हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, परतबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। एक मरतबा पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। हजरात, बहुत अहम वक्त है, बहुत ख़ास वक्त है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। बिरादरान इस्लाम, मैंने आयत करीमा आपके सामने पेश की है। अल्लाह ताला फरमाता है रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन, अल्लाह उन तमाम सहाबा से राज़ी है और ये सहाबा अल्लाह तबारक व ताला की अजर सवाब से राज़ी है। हजरात, आज अहले सुन्नत वल जमात को जहां बहुत सी चीज़ों का चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, वहीं खास तौर से रवाफिज शियत के हमले जोर से बहुत पे दर पे और जोरदार अंदाज में मसलक आला हजरत पे हो रहे हैं। जहां मुसल्लमाते अहले सुन्नत वल जमात, मुतक़िदाते अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत पे हमले कर रहे हैं, ये शियत और राफिजियत के फिर ये जमात के अफराद, वहीं खास तौर से खुलफाए सलासा और दीगर सहाबा, खुलफाए सलासा को खुसूसी तौर पर और तमाम सहाबा को उमूमी तौर पर तानो तशनी का निशाना बना रहे हैं। मैं ये बताऊं हजरात कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान जुन्नूरैन, हजरत तलहा और जुबैर, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला, ये वो सहाबा जो अजिल्ला सहाबा में से हैं, उन्हें गालियां देना, उन्हें बुरा भला कहना, बल्कि शेखैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंह भरकर गालियां देना, जैसा कि आप लोग सुनते भी होंगे सोशल मीडिया पे। मैं 30-35 साल से मैं भी अपने तौर पर लोगों के हालात को जानता हूं, लेकिन कभी ऐसा न सुना कि ये शियत और राफिजियत मुनाजरे के लिए भी आन पड़े हो, पहले होते हो। लेकिन अब ये वक्त आ गया कि ये लोग मैदान मुनाजरा में भी कूद पड़े हैं, डिप्लोमा लेकर भी कूद पड़े हैं, उर्दू डिप्लोमा की सनद लेकर भी कूद पड़े हैं, और हजरत अमीर माविया को तो बाद में हजरत शेखैन करीमैन को गालियां कुफ्र तक की बात करते हैं। मैं आलम इस्लाम और आलम सुन्नियत को ये कहना चाहता हूं और पूरी शियत और अफजियत को बताना चाहता हूं अपने असातिज़ा के दुआओं को लेकर कि अगर ये अबू बकर, उमर, उस्मान और अमीर माविया ये मुसलमान न रहे तो दुनिया का कोई भी मुसलमान नहीं रहा। हजरात, मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, ये मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिसकी भी इत्तिबा करोगे तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। एक मौके से आका ने फरमाया खैरु उम्मती करनी व सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, ऐ लोगों सबसे बेहतर लोग मेरे जमाने की उम्मत है और उसके बाद जो करीब वाले हैं फिर जो करीब होंगे। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात की इस्तिलाह में सहाबा और ताबीन और तबे ताबीन के ये इस्तिलाहात हैं। हजरत अल्लामा खतीबुल इस्लाम इमरान हनफी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। अब एक बात मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ हजरात, सोहबत का असर पड़ता है। अगर अच्छों की सोहबत आप इख्तियार करें तो अच्छे बन जाएंगे, बुरों की सोहबत इख्तियार करें तो आप बुरे बन जाएंगे। ये मसल मशहूर है और ये शेर मशहूर है, सोहबत साले तोरा साले कुनत और सोहबत ताले तोरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत आपको अच्छा बना देगी, बुरों की सोहबत आपको बुरा बना देगी। मेरे भाइयों, एक बात ये भी अर्ज करूं, हम मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं और मसलक इत्तिदाल पे हैं। हमारे अंदर ना इफरात है, ना हमारे अंदर तफरीद है, ना हमारे अंदर ज्यादती है, ना हमारे अंदर कमी है, बल्कि यूं कहो मसलक आला हजरत मोहब्बत रसूल का नाम है, मसलक आला हजरत मोहब्बत सहाबा का नाम है, मसलक आला हजरत अरे मोहब्बत अहले बैत का नाम है, मोहब्बत औलिया का नाम है। यूं इसकी वजाहत हमारे असातिज़ा ने की। अगर इन उलमाए किराम से पूछूं तो कोई कहेंगे मसलक आला हजरत फतावा रज़विया का नाम है, अलमुन वल औला का नाम है, अरे दौलतुल मक्किया का नाम है। ये सब अपनी जगह पे, लेकिन मैं एक तशरीह अपने असातिज़ा की दुआओं से कर रहा हूं। अरे मोहब्बत रसूल हो तो मसलक आला हजरत है, मोहब्बत सहाबा हो तो मसलक आला हजरत है, मोहब्बत अहले बैत हो तो मसलक आला हजरत है, मोहब्बत औलिया हो तो मसलक आला हजरत है। वो क्यों? अरे मोहब्बत रसूल
जहां होगी ना यहूदियत नसरानियत नहीं आएगी, जहां मोहब्बत सहाबा हो ना वह शियत और राफजियत नहीं आएगी, जहां मोहब्बत अहले बैत हो वह खारजियत नहीं आएगी, और जहां मोहब्बत औलिया हो वहां वहाबियत नहीं आएगी। मैं अर्ज कर रहा था होता है, सोहबत का असर होता है। अंदाजा कीजिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की सोहबत में रहने वाले कोई मुहद्दिस हुए, कोई मुफक्किर हुए, कोई मुहक्किक हुए, मुसाहिबे तसनीफात कसीरा, इमाम मोहम्मद रजा खान की बात ही क्या, जिनके उर्स में आप हजरत हाजिर हैं, आला हजरत की सोहबत में जो रहे मेरे भाइयों, तो कोई इमामुल मुनाज़रीन हुए, कोई इमामुल मुहद्दिसीन हुए, खुतबा मुनाज़रीन, असहाबे शेर व अदब, अरबाबे तदबीर व सियासत, और क्या क्या हुए ये बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए मेरे भाइयों, अगर आले रसूल की सोहबत में हो तो इमाम मोहम्मद रजा हो, तो इमाम मोहम्मद रजा हो मुजद्दिद आजम बन जाए। आगे बढ़िए जो गरीब नवाज की सोहबत में हो वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो जाए, और गौसे आजम की सोहबत में हो शाह शेख अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन बन जाए मेरे भाइयों। और आगे बढ़ जाए जो इमाम आजम की सोहबत में हो, ये इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद इमाम ज़फ़र अलैहिमुर रहमा बन जाए, तो मेरे भाइयों इमाम हुसैन की सोहबत में हो वो सैयद सज्जाद बन जाए, अरे अली की सोहबत में हो वो हसनैन करीमैन और इब्ने अब्बास बन जाए। अरे जो मेरे जब ये आका के गुलामों की सोहबत का ये आलम है, तो मेरे आका की सोहबत में जो अफराद रहे, मेरे आका की सोहबत में जो जमात रही, क्या वो इस दर्जे का हामिल नहीं? क्या आज उनके ईमान और इकाल पे एतमाद किया जाए, उनकी बातों पे भरोसा किया जाए? मैं कहना चाहता हूँ अगर ये सहाबा ही लाएतबार हो गए, गैर एतकादी हो गए, तो फिर हमारा कुरान भी गैर एतबारी हो जाएगा, हमारी हदीस भी गैर एतबारी हो जाएगी। मानना पड़ेगा ये तमाम सहाबा आदिल और सिका है, और इन्हीं के जरिए से ये कुरान और हदीस हम तक पहुंची है। आखिर बात में कहकर अपनी बात को खत्म करूं, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत याफ्ता हजरत अबू बकर सिद्दीक है, जिनके बारे में आका ने फरमाया मानफनी मालो हदिन कत्तो मानफनी मालो अबू बकर, अरे किसी के माल ने इतना फायदा इस्लाम को या मुझे नहीं पहुंचाया जितना के अबू बकर के माल ने मुझे फायदा पहुंचाया है। एक मौके से आका ने फरमाया हुब्बु अबी बकरी व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती, अरे अबू बकर से मोहब्बत करना और उनका शुक्रिया अदा करना मेरी पूरी उम्मत पे वाजिब है। आगे मेरे आका ने फरमाया अरे जिस किसी ने भी इस्लाम पर और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पे एहसान किया उसका बदला मैंने दुनिया में ही अता कर दिया है, सिवाय अबू बकर के। इसने मेरे साथ इस्लाम के साथ इस्लाम के ऊपर ऐसा एहसान किया है जो कयामत के दिन ही अल्लाह ताला अता फरमाएगा। मेरे भाइयों 11 हिजरी में अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन बने, 2 साल 2 महीने कुछ दिनों तक उम्र खिलाफत को अंजाम दिया, लेकिन कहीं से कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई माई का लाल ये बता नहीं सकता कि हजरत अली उनसे नाराज हो या उनकी खिलाफत से नाराज हो या उन्होंने शिकवा किया हो। हजरत उमर फारूक आजम जब खलीफा बने 13 हिजरी में, आप 10 साल 6 महीने 4 दिनों तक उम्र खिलाफत को अंजाम दिया। वो उमर जिनके बारे में आका ने फरमाया लौकाना बादी नबी लकान उमर इब्न खत्ताब, अरे मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद नहीं होता तो उमर इब्न खत्ताब नबी होते। अरे अबू बकर सिद्दीक के बारे में आला हजरत फरमाते हैं अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। और उमर फारूक आजम के बारे में आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिसकी अदा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, जाने शान अदालत पे लाखों सलाम। वो उस्मा जिनके बारे में आका ने फरमाया अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, अरे मैं ऐसे शख्स से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। मेरे भाइयों 23 हिजरी में और मेरे बुजुर्गों उस्मान जुन्नूरैन खलीफा बने, और आप 12 साल तक मुकम्मल खलीफा रहे, 12 साल तक आप खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि हजरत अली इब्न अबी तालिब आपसे नाराज हो। आखिर बात कहूं अमीर माविया पे लोग भोगते हैं, ये शिया और राफजी लोग भोगते हैं। अरे सुनो वो अमीर माविया जिनके बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो इमाम आजम के अशारशत तलामजा में से हैं, जिनके बारे में सुफियान सौरी ने फरमाया कि मैं पूरे साल में एक दिन भी अब्दुल्ला इब्न मुबारक
मुबारक की तरह गुजारना चाहूं तो नहीं गुजार सकता। वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक से किसी ने पूछा, ए लोगो अब्दुल्ला इब्न मुबारक आप बताएंगे क्या मेरे माविया अफसल है या उमर इब्न अब्दुल अजीज अफसल है? अल्फाज ये है, सोइल अली इब्न मुबारक अय्युहुमा अफजलो मुआवियतो औ उमर इब्न अब्दुल अजीज फकाल अल गुबारुल लदी दखला फी अनफे फरसी मुआविया मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिन मिस्ले उमर इब्न अब्दुल अजीज। अरे जात की बात करते हो, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला सरकार की मैयत में जो आपने सफर किया, उनके घोड़े की कान में, उनके घोड़े की नाक में जो गुबार दाखिल हुआ, वो गुबार भी उमर इब्न अब्दुल अजीज से अफजल है। बस यही कहकर अपनी बात को खत्म करूं। आला हजरत का ये अकीदा और हम सब का अकीदा अहले सुन्नत का है, बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की और अमीर माविया के ताल्लुक से फर्क मरातिब बेशुमार और हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कार फुज्जार। तमाम सहाबा हमारे लिए लायक एहतराम है। मौला तबारक व तआला अहले सुन्नत वल जमात अल मारूफ मसला के आला हजरत पे कायम व दायम रखे। अस्सलाम। माशाअल्लाह हमारे पास बहुत सारे खुतबा हैं और कुछ की पर्चियाँ भी बाकी हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलीम साहब क़िबला के पास पर्चियाँ जमा हैं। किसी का नाम भी मैं खुद नहीं बोलता हूँ। अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब भी हैं, शेखुल जामिया हैं, दीगर असातिज़ाए किराम हैं। तो कोशिश में लगे हैं कि सबके नंबर आ जाएं। मिंबर पाक की जीनत बने हुए लाइक इज़्ज़त एहतराम मखदूम गिरामी वक़ार शहज़ादे आले रसूल चमन ज़हरा के फूल जिगर गोशे बतूल नवासा हुजूर रैहान मिल्लत पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद सैफ मियाँ साहब क़िबला मक़द्दसुल्लहु नूरानी आने वाले हैं, लेकिन हज़रत से माज़रत चाहते हुए उनसे पहले ख़तीब ज़ीशान हज़रत मौलाना ज़ाहिद रज़ा साहब क़िबला बरेलवी तशरीफ़ लाएँ और सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। आप हजरात तशरीफ रखें। लम याते नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तू न शुद पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना। और एक शेर और मुलाहजा फरमाइए, और रूहो फ़िदा का फ़ज़िद हरक़ा, और रूहो फ़िदा का फ़ज़िद हरक़ा, यक शोला दिगर बरज़न इश्क़ा, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। ये उठक बैठक का माहौल खत्म करें, आप हजरात बैठ जाएं। आप हजरात उर्से आला हजरत में आए हुए हैं। गर्मी हो रही है, ये आपको ही एहसास नहीं, हमारे उलमा को भी एहसास है। और ये भी आला हजरत फाज़िल बरेलवी की करामत है कि अब से 2 दिन पहले इसी इस्लामिया ग्राउंड में तकरीबन इतना पानी था, एक बालिश्त पानी यहीं खड़ा हुआ था जहां आप बैठे हैं। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारिश पता नहीं कब से नहीं हुई है। हमारे हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा हुजूर सुबहानी मियाँ साहिब क़िबला और हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत अल्लामा हुजूर अहसन मियाँ साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलीम साहिब क़िबला और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत के जितने भी कारकुनान हैं, ये जितने भी लड़के लगाए गए तकरीबन 2000 के तकरीबन, जो सब रज़ाकार हैं, ये सब टेंशन में थे ये पानी कैसे खुश्क होगा। लेकिन ये भी मेरे आला हजरत की करामत है कि ऐसा लग रहा है कब से बारिश नहीं हुई है। आप सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी के उर्स में आए हुए हैं, आप थोड़ी सी तसल्ली रखिए। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे उलमा इकराम ज़ी वक़ार, उलमा इकराम ज़ी इल्म, उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अगर आप इनको एक एक को बुलाएंगे तो कितना पैसा खर्च होगा, लेकिन यहाँ पर ये आ रहे हैं और आपको कुछ पैगाम दे के जा रहे हैं। आप भी तो ज़रा सुकून से रहिए। मैं अपने मेहमानों से गुजारिश करता हूँ आला हजरत के वास्ते कि आप बैठ जाइए, मुफ्ती आज़म हिंद के सदक़े में बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। अभी तो काफ़ी वक्त है, आप इधर के लोग भी बैठ जाइए, थोड़ी सी गर्मी ख़त्म कीजिए। और ये आला हजरत का शेर
کہ الروح فدا کا فزد حرقا یک شولہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ حضرات، یہ عرس اعلی حضرت کی دوسری تقریب جو کہ آخری تقریب ہے سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ سے یہ علماء کرام کیوں محبت کرتے ہیں، یہ علماء کرام آپ سے کیوں الفت کرتے ہیں، ذرا آپ تھوڑا سا اس پہلو پر نظر رکھیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کے چہرے کی وجہ نہیں ہے، آپ کے سرمایہ یا دولت کی وجہ نہیں ہے، بلکہ صرف اہل سنت والجماعت کے جو علماء آپ سے محبت کرتے ہیں، عوام سے محبت کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ عوام ہماری اہل سنت والجماعت ہے، بے شک سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، اس لیے اس عقائد کی بنیاد پر ہم محبت کرتے ہیں اور آپ بھی ہمارے علماء سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات، اس پرفتن دور میں آپ دیکھیے وہ وقت ہم سن رہے ہیں اپنے علماء کی زبانی کہ وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جس دور میں چاروں طرف سے جب حملے کیے جا رہے تھے، کبھی تو نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ رب العالمین کبھی پاگل کہا جا رہا تھا، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی کسی طریقے سے اسی طریقے سے اور بھی فتنے اٹھے۔ کسی نے کہا مزاروں پہ چادر چڑھانا، مزاروں پہ پھول چڑھانا اور یہ نظر و نیاز کرنا، یہ فاتحہ دلانا، یہ حلوے پہ فاتحہ یا ملیدے پہ فاتحہ، ساری نظر و نیاز سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ایسے ماحول میں صلاۃ و سلام پڑھنا یہ سب ناجائز ہے، بدعت ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر یا رسول اللہ کہا یہ بھی ناجائز، بدعت و حرام ہے، لیکن اس کا جواب دینے کے لیے کوئی اور نہیں اٹھاتا۔ تو اس وقت میں جو وقت سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی کا وہ دور تھا، تو چاروں طرف سے ان فرقہ باطلہ نے جنم لیا، اور جیسے برسات میں مینڈک بولتے ہیں اسی طریقے سے یہ فرقہ باطلہ بول رہے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، ایک عاشق رسول اسی بریلی کی سرزمین سے اٹھا جس کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ان فرقہ باطلہ کو ایک ایک کو الگ الگ جواب دیا ہے۔ قادیانیوں کو الگ جواب دیا، رافضیوں کو الگ جواب دیا، دیوبندیوں کو الگ جواب دیا، وہابیوں کو الگ جواب دیا، نیچریوں کو الگ جواب دیا، قادیانی کو الگ جواب دیا، چکڑالویوں کو الگ جواب دیا، اور اس کے بعد جو آستین میں پلنے والے سانپ تھے ان کو الگ جواب دیا۔ اور اعلی حضرت نے اپنا رخ مصطفیٰ کی جانب کر کے کہا یا رسول اللہ، ایک طرف ہے اعدائے دین اور ایک طرف ہے حاسدی، ایک طرف ہے اعدائے دین اور ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہاد، تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ، پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے امام فرماتے ہیں ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ جھوم کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی علم والوں کے فضائل کو بیان فرماتا ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے جس طرح دیگر
मादी चीजों की जरूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा उसकी हयात गुजारने के लिए इल्म की जरूरत पेश आती है। बिरादरान इस्लाम, आला हजरत फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान सिर्फ एक फ़क़ी का नाम नहीं, सिर्फ एक मौलवी का नाम नहीं, सिर्फ एक मुहद्दिस का नाम नहीं, सिर्फ एक मुफस्सिर का नाम नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आला हजरत एक लैब का नाम है। आला हजरत सारी दुनिया के मर्जों के पहचानने का नाम है। आज दुनिया के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां पनप रही हैं, और जब बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, डॉक्टर सजेशन देता है कि आपको ब्लड चेक कराना होगा। बिरादरान इस्लाम, हम देखते हैं आदमी ब्लड का सैंपल देता है, उसके बाद उसे लैब में जांचा जाता है, परखा जाता है, उसमें जो जरासीम पैदा होते हैं लैब वाले उसको निखार कर साफ करते हैं कि इसके अंदर ये बीमारी पैदा हो गई, इसके अंदर ये बीमारी पैदा हो गई, इसके लिए इलाज ये होगा, इसके लिए इलाज ये होगा। मैंने कहा ये दुनिया की बीमारियों की लैब है, जहां हमारे ग्रुप का ब्लड का सैंपल डालकर हमारी बॉडी की बीमारियों को परखा जाता है, हमारी बॉडी के अमराज को देखा जाता है। मगर इमाम अहमद रजा एक ऐसी लैब है, एक ऐसा दीनी लैब है कि जिसके अंदर लोगों के ईमान के सैंपल को डाला जाता है, और डालने के बाद देखा जाता है, और जब आला हजरत के उन फतावों के दरमियान, आला हजरत के उन मिशन के दरमियान लोगों के ईमान और अकीदे का सैंपल डाला जाता है, इमाम अहमद रजा उसकी जो रिपोर्ट पेश करते हैं, पता चलता है इसके अंदर अगर रिफ्त है, आला हजरत बताते हैं मेरे पास आ, मैं तुझे बताऊंगा कि रिफ्त से बचना कैसा है। उसका सैंपल चेक होता है, इसके अंदर वहाबियत की बीमारी पैदा हो गई है, इसके अंदर नेचरियत की बीमारी पैदा हो गई है, ये वहाबी हो चुका है, इसके अंदर देवबंदियत की बीमारी पैदा हो गई है। मैंने कहा सुनो, आला हजरत किसी एक आलिम दीन का नाम नहीं है, बल्कि आज के दौर में अगर ईमान का सैंपल लेना है तो बरेली की इस इमाम अहमद रजा लैब में डाल दो, पता चलेगा कि किसके अंदर क्या बीमारी पैदा हो गई है। हर चीज के ग्रुप का इलाज मेरे इमाम अहमद रजा के पास नजर आ रहा है। जहां दुनिया के साइंसदानों की अक्लें मारूफ हो जाती है, वहां से मेरा इमाम जवाब देता है। आज लोग बहुत जुबानें चलाने लगे कि इमाम अहमद रजा को बढ़ा दिया। मैंने कहा हमने नहीं और आपने नहीं, इमाम अहमद रजा को मुस्तफा ने बढ़ाया है, इमाम अहमद रजा को गौसे आदम ने बढ़ाया है। अजीजाने गिरामी, बहुत तेजी के साथ आज हर खानका में पीर बैठे हैं, आज हर जगह बड़े बड़े पीरे मुर्गा नहीं पीरे मुर्गा बैठे हुए नजर आते हैं। मगर याद रखें यही दौर है, आला हजरत के विसाल से 6 या 7 साल पहले का जमाना है। लंदन बरतानिया की सरजमीन से एक फितना चला जहां साइंसदानों ने कहा था कि आसमान का वजूद नहीं है, आसमान कोई चीज नहीं है। आप भी आसमान देखते हैं, हम भी आसमान देखते हैं। लोगों ने साइंस वालों से कहा था ये जो हमें नजर आता है ये आसमान नहीं तो क्या है। उन्होंने कहा था ये हमारी नजरों का धोखा है। जब नजर काफी दूर तक चली जाती है उसके बाद नजरों में एक सतह नजर आने लगती है, उसी को हम आसमान समझते हैं। बिरादरान इस्लाम, ये मसला जब बरतानिया से चला सारी दुनिया में गूंजता रहा, सारी दुनिया में इस पर चेमी गोइयां होती रही। मगर ये मसला चलते चलते जब बरेली की सरजमीन पर आता है और बरेली के सौदागरान में आता है, हजरत मोहतरम आला हजरत ने सुना, हदीसाने मोहतरम इमाम अहमद रजा ने जैसे ही सुना है, सुनने के बाद आपने फरमाया मुझे कलम और कागज दे दिया जाए। हदीसाने मोहतरम आला हजरत ने लिखना शुरू कर दिया। इमाम अहमद रजा जवाब लिख रहे हैं, हजरत मोहतरम आला हजरत तो लिखने बैठ गए। मगर याद रखो उस वक्त बड़ी बड़ी खानकाहें थी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े प्रोफेसर थे, बहुत सारे साइंटिस्ट मौजूद थे, मगर किसी ने इस फितने का जवाब ना दिया। पीरे मोगा सुनते रहे, साइंटिस्ट सुनते रहे, प्रोफेसर सुनते रहे, मगर कोई खड़ा ना हुआ जो इस फितने का जवाब देता। मैंने कहा जी खड़ा होना भी नहीं चाहिए था, इसलिए वो खड़ा होगा जिसको अल्लाह ने खड़े होने के लिए पैदा किया है, और वो कोई और नहीं, वो बरेली का अहमद रजा है जो हर फितने का जवाब देने के
के लिए खड़ा हो गया है। अजीजान मोहतरम, सैयदी सरकार आला हजरत ने फर्क लिखना शुरू कर दिया। इतने में हुजूर मुफस्सिर कुरान सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए। कहते हैं हुजूर क्या लिखा जा रहा है? आला हजरत फरमाते हैं शहजादे क्या आपको पता नहीं है, इन साइंस वालों का दिमाग खराब हो गया है, इन्होंने आसमान का इनकार कर दिया है। सरकार नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं हुजूर आसमान रहे या ना रहे हमारे ईमान पर उसका क्या फर्क पड़ता है? हमारे ईमान की चीजों में आसमान का जिक्र नहीं है। आसमान रहे या ना रहे, मगर जहां किसी की नजर नहीं देखती वहां मेरे आला हजरत की नजर जाती है, वहां बरेली का अहमद रजा देखता है। सरकार आला हजरत ने जवाब दिया था, ए मेरे शहजादे आपको पता नहीं है हम जिस कुरान की तिलावत करते हैं, जो कुरान हमारे नबी पर नाजिल हुआ, उस कुरान को हम आसमानी किताब कहते हैं। और जब हम आसमान को नहीं मानेंगे तो कुरान का आसमानी होना गलत हो जाएगा। इसलिए अहमद रजा पे लाजिम है जब तक जान में जान है वो कुरान और साहिब कुरान की इज्जतों की हिफाजत करता रहेगा। अजीजान गिरामी, उस साहब का नाम इमाम अहमद रजा है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तनहा रजा का है। बिरादरान इस्लाम, आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। आला हजरत ने हर तौर पर हमारे ईमान और अकीदे का तहफ्फुज़ किया है। हम अपनी जबीनों को उनके कदमों पर रगड़ दें तब भी इमाम अहमद रजा का हम हक अदा नहीं कर सकते। जिस इमाम की किताबों को पढ़कर आबा व अजदाद देखते रहे, पढ़ते रहे, मगर